स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पीएन जंक्शन डायोड. दिस इज़ अ symbol of the PN junction diode. So basically what is PN junction? PN means positive and for negative. Junction means कि जो चीज़ इन दोनों टर्मिनल्स को साथ में जोड़ती है. So PN junction is the metallurgical boundary between the N and P regions of a semiconductor crystal. PN junction consists of two semiconductor regions of opposite type. Such junctions such as pronounced rectifying behavior. They are also called P and N diodes in analogy with vacuum tubes. So basically PN junction होते हैं वो टू सेमीकंडक्टर रीजन से बनते हैं. सच जंक्शन को बोलते हैं pronounced rectifier behavior. So इनको बोलते हैं PN diode in analogy with vacuum tubes. The PN junction is a versatile element which can be used as a rectifier, as an isolation structure, and as a voltage dependent capacitor. In addition, they can be used as solar cells, photodiodes, light emitting diodes, and even laser diodes. They are also an essential part of metal oxide silicon field effect transistor. इसको बोलते हैं MOSFET and bipolar junction transistor. इसको बोलते हैं BJTs. So PN junction consists of two semiconductor regions with opposite doping type as shown in figure. P type and N type. The region on the left is P type with the acceptor density Na, while the region on the right side N with the donor density Nd. Okay. क्रॉस सेक्शन ऑफ पी एन जंक्शन. पी टाइप में होते हैं पॉजिटिव आइंस, एन में नेगेटिव आइंस होते हैं और इनको वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है. पी को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है और एन को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है. पी को बोलते हैं एनोड और दूसरी साइड को कैथोड. ठीक है. तो सेंटर में जो बनती है इसके उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर और विड्थ डिपेंड कर पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी. The region on the left is P type with an acceptor density Na. ठीक है. पॉजिटिव के अंदर जो Na है, नेगेटिव है, एनोड है, उसको हम यूज़ करेंगे. वाइल रीजन ऑन द राइट साइड पर क्या है, एन टाइप है, उसके अंदर डोनर यूज़ करेंगे Nd. ठीक है. Na क्या है, एक्सेप्टर होगा, Nd होगा डोनर. द डोपेंट आर अज्यूम्ड टू बी शैलो so that electrons holes density in the n type and p type region is approximately equal to the donor और acceptor density. ओके. तो p टाइप और n टाइप के अंदर क्या है, एक पास से एनोड आएगा, एक पास से कैथोड आ जाएगा. तो सेंटर वाला रीजन को क्या बोलते हैं, XD. We will assume unless stated otherwise that the doped regions are uniformly doped and that the transition between the two regions is abrupt. We will refer to this structure as an abrupt PN junction. So frequently we will deal with PN junctions in which one side is distinctly higher doped than the other. We will find that in such a case only the low doped region needs to be considered since it primarily determines the device characteristics. So we will refer such structure as a one-sided abrupt PN junction. The junction is biased with a voltage VA shown in figure. We will call the junction forward biased if a positive voltage is applied to the P doped region, then and reverse biased if a negative voltage is applied to the doped region. The contact to the P type region is also called the anode, while the contact to the N region is called the cathode. So in reference to the positive carriers and negative carriers each region. ठीक है. नेक्स्ट भी है द फ्लैट बैंड डायग्राम. तो एनर्जी डायग्राम से मैंने आपको करवाई थी एनर्जी डायग्राम, जो कि एनर्जी बैंड डायग्राम पीएन जंक्शन की क्या होती है. अगर तो हमने मर्जिंग नहीं करी है देन बिफोर मर्जिंग क्या बनेगी, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन विल बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग अ गैंडेकन एक्सपेरिमेंट. तो इसमें देखिए डायग्राम में पी टाइप के अंदर जो है
क्यू एक्स यहाँ से लेके ऊपर तक जाने के लिए आ जाएगा वैक्यूम के ऊपर, पी टाइप और एन टाइप के आ जाएगा ई सी एंड ई आई। ठीक है, so we imagine that one can bring both semiconductor regions together, aligning both the conductor and valence band energies of each region. So this field is so called flat band region. सो ये चीज़ देखिए कि डज नॉट ऑटोमेटिकली लाइन द फर्मी एनर्जीज। फर्मी एनर्जीज कौन कौन सी होगी, ई एफ एन से लेके ई एफ पी। सो ऑल्सो नोट दैट दिस फ्लैट बैंड डायग्राम इज नॉट इक्विलिब्रियम डायग्राम। सो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होंगे, लोअर एनर्जी लेवल पर ही वो रहेंगे। द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज देयर फॉर इफेक्टेड बिफोर थर्मल इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड। जो जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम तक नहीं आ जाएगा तब तक जो मोशन, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में ही रहेंगे। द डायग्राम जो वो फ्लैट डायग्राम शो करिए, दिस रेफर टू हॉरिजॉन्टल बैंड एजेस। नेक्स्ट है हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो सबसे पहले देखिए इस साइड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, लेफ्ट साइड पर राइट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयंस। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है, शॉर्ट टाइम आफ्टर द जंक्शन इज एस्टेब्लिश्ड एंड थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, द चार्ज कैरियर इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग विद होल्स, leaving the unneutralized negatively ionized receptor Na in the p region and unneutralized positively ionized donor in the n region. So this region is ionized donor and receptor creates a space charge and its region is called the depletion layer. देखिए कुछ जो चार्जेस हो जाएंगे वो नेगेटिव पर चले जाएंगे, आधे पॉजिटिव पर चले जाएंगे, आधे क्या बैरियर को क्रॉस करके जब सेंटर वाली डिप्लीशन लेयर है वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, देन क्या हो जाएगा वहाँ पर रिकम्बिनेशन हो जाएगा चार्ज का, तो वहाँ पर डिप्लीशन लेयर एक बन जाती है। सो व्हाट इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल की डेफिनेशन क्या है, डी ई एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। द फर्मी लेवल इन द पी एन टाइप सेमीकंडक्टर मस्ट बी इक्वल। ठीक है, पी और एन टाइप के जो फर्मी लेवल्स हैं उनका जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के वो इक्वल होने चाहिए। दिस रिक्वायरमेंट वाला कांस्टेंट फर्मी लेवल क्या करेंगे, एन टाइप को फर्मी लेवल के नीचे तक वो पुश करेंगे। डायग्राम में देखिए इधर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है फर्मी लेवल का टू डाउन टू बी कांस्टेंट विद द पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल है शोन द डायग्राम। तो एक्स डी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई क्यू बाई 1 बाई एन डी प्लस 1 बाई एन ए इंटू बी बी आई। So what is built-in potential? Built-in potential in a semiconductor equals to the potential across the depletion region in the thermal equilibrium. So thermal implies that the Fermi energy is constant throughout the P and N diodes. So this built-in potential equals the difference between the Fermi energies. So जितने भी हमारी थर्मल एनर्जीज हो जाएंगी एजिस की ई एफ एन एंड ई एफ पी, उनको हमने डिफरेंस को डिवाइड कर देना है बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए इजकल टू माइनस बी टी एन डी इंटू एन ए बाय एन आई का स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू इट ऑल्सो इक्वल टू द सम ऑफ द बल्क पोटेंशियल ऑफ ईच रीजन फाई एन फाई पी। Since the bulk potential quantifies the distance between the Fermi energy and intrinsic energy, so expression क्या आ जाएगा, फाई माइनस वी टी आई एन क्या आ जाएगा, एन डी इंटू एन ए बाय
Ni square. सेमीकंडक्टर डायोड्स, हाँ जी, डायग्राम देखिए पहले। लेफ्ट साइड पर क्या है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, राइट पर पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं। डिप्लीशन लेयर कैसे बनेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव जब रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो जब पहली बार क्या हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू 0 वोल्ट, मीन्स कि जब कोई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई नहीं करी गई है। अ सेमीकंडक्टर डायोड इज क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग द एन टाइप सेमीकंडक्टर टू ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, आई पी इज इक्वल टू 0, आई करंट कितना हो जाएगा, 0 मिली एम्पेयर आ जाएगा। आई डी भी कितना आ जाएगा, 0 मिली एम्पेयर आ जाएगा। देन क्या हो जाएगा, मेटल, दिस इज अ मेटल कंडक्ट आ जाएगा। So in the absence of a bias voltage across a diode, the net flow of charge is one direction is 0. So जब भी इसके अंदर बायस वोल्टेज को हम 0 कर देंगे तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बायस इज द टर्म यूज्ड व्हेन एन एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाइड, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज को हम अप्लाई करते हैं। पी एन जंक्शन डायोड आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू 0 वोल्ट आ जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा डायोड का। फॉरवर्ड बायस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, पी एन डायोड आ जाएगा। व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज वी डी इज अप्लाइड, जब वी डी को हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, शोन दी फिगर, थर्मल टू एन साइड एंड पी साइड पर, इट फॉर्म्स ए फॉरवर्ड बाइस्ड। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। इन दिस स्टेप अप इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बी प्रेशर टू रिकम्बाइंड विद द आयंस नियर द बाउंड्री। तो जैसे जैसे वी डी इंक्रीज करेगा, डिप्लीशन विथ डिक्रीज अंटिल ए फ्लड ऑफ मेजॉरिटी करियर स्टार्ट पासिंग थ्रू आई एस रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉरवर्ड बाइस के अंदर इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई वी डी वाई एन वी टी माइनस 1। नेक्स्ट वी हैव द रिवर्स बायस्ड। हाँ जी, रिवर्स बायस पर क्या आ जाएगा, जब एक्सटर्नल वोल्टेज वी डी अप्लाई करेंगे, देन पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल टू द एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल द पी साइड पर जब ये फ्री चार्ज करियर्स हो जाएंगे, विल बी अट्रैक्टेड अवे बाय द वोल्टेज सोर्स। दिस विल इफेक्टिवली इंक्रीज द डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज करेगी विद इन द डायोड। सो दिस वाइडनिंग द डिप्लीशन रीजन विल क्रिएट टू ग्रेट अ बैरियर फॉर द मेजॉरिटी करियर्स टू ओवरकम। जितनी डिप्लीशन लेयर ज़्यादा हो जाएगी उतना ही वो जो चार्ज है एक रीजन से दूसरे रीजन तक वो जा नहीं पाएंगे। सो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पर करियर फ्लो कितना हो जाएगा, चार्ज करियर फ्लो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द नंबर ऑफ माइनॉरिटी करियर विल नॉट बी अफेक्टेड, जितने माइनॉरिटी चार्ज करियर उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज करियर पर इफेक्ट पड़ेगा। दिस कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड रिवर्स बायस, इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। दिस स्मॉल करंट फ्लो ड्यूरिंग रिवर्स बायस इज कॉल्ड अ रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स बाइसिंग के दौरान जितना भी स्मॉल माइनर सा करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब क्या, नाउ कंसीडर द पी एन डायोड विद एन अप्लाइड बायस वोल्टेज बी ए। डायोड वोल्टेज को बोलते हैं वी ए। फॉरवर्ड बायस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अप्लाइंग ए पॉजिटिव वोल्टेज टू अनदर एनोड। सो पी टाइप रीजन रिलेटिव कैथोड को एंड रीजन बोलते हैं। तो रिवर्स बायस के अंदर क्या है, ए रिवर्स बायस कॉरेस्पॉन्ड टू ए नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई टू द कैथोड। बोथ बायस वोल्टेज मोड्स आर इलस्ट्रेटेड विद फिगर, रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस्ड। The applied voltage is proportional
to the difference between द फर्मी एनर्जी इन एन टाइप एंड पी टाइप क्वाजी न्यूट्रल रीजन को बोलते हैं हम इसको. As the negative voltage applied, the potential across the semiconductor increase and so does the depletion layer width. As the positive charge is voltage applied, the potential across the semiconductor decrease and with it, the depletion layer width. Total potential across the semiconductor equal the built-in potential minus the applied voltage. हाँ जी, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द सेमीकंडक्टर कितना हो जाएगा. पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस अप्लाइड वोल्टेज. पोटेंशियल माइनस अप्लाइड. दिस इज द रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन. रिवर्स बाइसिंग में क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा फाई आई माइनस वी आई एंड फॉरवर्ड में आ जाए क्यू आई फाई आई माइनस वी ए. सो व्हाट आर डायोड्स मेड आउट ऑफ. डायोड किस चीज़ से बनते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से. सिलिकॉन को एस आई से डिनोट करते हैं, जर्मेनियम को हम जी ई से डिनोट करते हैं. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ 2D स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकॉन क्रिस्टल. Silicon and germanium are the two most common single elements that are used to make diode. A compound that is commonly used in gallium arsenide, especially in the case of LEDs because of its large band gap. जितना इसके अंदर गैलियम आर्सेनाइड के अंदर जो है एलडी के अंदर बैंड गैप ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मोस्टली यूज़ करते हैं. सिलिकॉन और जर्मेनियम आर बोथ ग्रुप 4 एलिमेंट. ग्रुप 4 एलिमेंट बोलते हैं इसको, मीनिंग दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप अगर इसका ऑर्बिट देखेंगे तो लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं. सो देयर स्ट्रक्चर अलाउज देम टू ग्रो इन अ शेप कॉल्ड अ डायमंड लैटिस. तो इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एज ए डायमंड स्ट्रक्चर का बनेगा. तो गैलियम इज़ अ ग्रुप 3 एलिमेंट. जो गैलियम है ग्रुप 3 का एलिमेंट होता है. वाइल आर्सेनाइड इज़ ए ग्रुप 5 एलिमेंट. जो आर्सेनाइड होता है ग्रुप 5 का एलिमेंट होता है. व्हेन पुट टुगेदर, जब इनको एक साथ बनाते हैं तो गैलियम आर्सेनाइड एक वो कंपाउंड क्रिएट कर देता है दैट क्रिएट्स अ जिंक ब्लेंड लैटिस. उनको जिंक ब्लेंड लैटिस बोलते हैं. So in both the diamond lattice and zinc brand lattice, each atom shares its valence electron with its 4 closest neighbors. The sharing of electron is what ultimately allows diodes to be built. When dopants from the groups 3 or 5 are added to silicon germanium, the gallium arsenide, it changes the properties of the material, so we are able to make P and N type material that become the diode. N type material कितने हैं? When extra valence electrons are introduced into a material such as silicon, an N-type material is produced. The extra valence electrons are introduced by putting impurities or dopant into silicon. The dopant used to create an N-type material are group 5 elements. The most commonly used dopants from the group 5 are arsenic, antimony and phosphorus. This is a 2D diagram. To the left
shows the extra electron that will be present when a group 5 dopant is introduced to a material such as silicon. This is a extra electron that is mobile. So p type के अंदर क्या हो जाता है, p type material is produced when the dopant that is introduced is group 3. ग्रुप 3 एलिमेंट हैव ओनली 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप 3 के अंदर 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देयरफॉर देयर इज अ इलेक्ट्रॉन मिसिंग. तो इनका एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है. दिस क्रिएट्स अ होल और ए पॉजिटिव चार्ज. होल के पास पॉजिटिव चार्ज आयंस होता है दैट कैन मूव अराउंड इन द मटीरियल. तो कॉमनली यूज ग्रुप 3 डोपेंट्स आर एल्यूमिनियम, बोरोन एंड गैलियम बोलते हैं हम इसको. The 2D diagram to the left shows the hole that will be present when a group 3 dopant is introduced to a material such as silicon. This hole is quite mobile in the same way the extra electron is mobile in an n-type material. So this is a p-n junction. p and n side आयनाइज एक्सेप्टर कितने हो जाएंगे, p में नेगेटिव चार्ज आयन, n में कितने हो जाएंगे आयनाइज डोनर कितने हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज आयंस. दिस इज अ स्पेस चार्ज रीजन. बीच में जो है H प्लस ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन. द पी एन जंक्शन कितना हो जाएगा, एन ए स्पेस चार्ज का रीजन देखिए आयोनाइज एक्सेप्टर हो जाएगा, आयोनाइज डोनर हो जाएगा. सो व्हेन नो एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड टू द पी एन जंक्शन, diffusions and drift balance each other out of both and holes and electrons. Okay, what is space charge region? It is also called a depletion layer. इसको depletion layer भी बोलते हैं. This region includes the net the positivity and negativity charge regions. ओके, जो स्पेस होती है इस रीजन के दौरान डज नॉट हैव एनी फ्री कैरियर. इसके आसपास जितनी भी स्पेस होती है उसके फ्री आयंस नहीं होते हैं. द विड्थ ऑफ द स्पेस चार्ज रीजन इज डोनेटेड बाय डब्ल्यू. जो विड्थ होती है स्पेस चार्ज रीजन की उसको डब्ल्यू बोलते हैं. द पी एन जंक्शन फार्मूला. मेटलर्जिकल जंक्शन के अंदर क्या होता है, पी एन एन टाइप मटीरियल को यूज़ करते हैं इकट्ठे. जब पी एन एन जंक्शन इकट्ठा हो जाता है तब उसको बोलते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन. एन ए एंड डी दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव डोपिंग इन नंबर ऑफ कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब्ड. दैट उसका जो एरिया होता है वो होता है 10⁻15 to 10⁻20. दिस इज अ डायग्राम ऑफ द बायस्ड पी एन जंक्शन. पी एंड एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाइड करते हैं इसके दौरान. द पी एन जंक्शन इज कंसिडर बायस्ड व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई. जब बाहर से इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइसिंग. 2 टाइप की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइस एंड द रिवर्स बाइस. दीज आर डिस्क्राइब्ड ऑन द नेक्स्ट साइड्स. पी एन बाइस्ड जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड. इन द फॉरवर्ड बाइस द डिप्लीशन रीजन श्रिंक्स स्लाइटली विद द विड्थ. फॉरवर्ड बाइस में क्या हो जाता है, डिप्लीशन रीजन श्रिंक हो जाती है. विद दिस श्रिंकिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चार्ज करियर टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली. सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करती है. द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन. करंट जो होता है जंक्शन के क्रॉस फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द डायोड इज द वोल्टेज एट विच द एप्रिशिएबल करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द डायोड. The barrier potential varies for different materials. रिवर्स बाइसिंग की होती है. अंडर रिवर्स बाइस द डिप्लीशन रीजन वाइडन्स.
जो रिवर्स बाइसिंग होती है उसके दौरान क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर होती है वो और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है। दिस कॉजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आयंस टू कैंसल आउट द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है आयंस की, वो रिवर्स बाइट के दौरान उसका आयंस टू कैंसिल कर देती है, कैंसिल अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज को वो कैंसिल कर देती है। तो इसकी वजह से एक स्मॉल लीकेज करंट ही होता है, फ्लो करता है सर्किट के बीच में, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट दैट फ्लोज अंडर रिवर्स बायस कंडीशंस। दिस सैचुरेशन करंट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इस सैचुरेशन करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बीइंग प्रोड्यूस इन द डिप्लीशन रीजन। सैचुरेशन करंट इज समटाइम्स रेफर टू एज ए स्केल करंट। सैचुरेशन करंट को स्केल करंट भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप टू द जंक्शन टेम्परेचर। ठीक है, जितना भी फॉरवर्ड बायस होती है वोल्टेज अप्लाई करते हैं रीजन का, उसके दौरान क्या होता है, डिप्लीशन लेयर श्रिंक होती है। जब जैसे ही डिप्लीशन लेयर श्रिंक हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ चार्ज करियर टू क्रॉस द डिप्लीशन रीजन डिक्रीज कर जाएगी। तो श्रिंक एनर्जी रिक्वायर्ड चार्ज करिए टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करते हैं उसकी वजह से करंट स्टार्ट टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। करंट जंक्शन के क्रॉस स्टार्ट कर देता है जाना। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द डायोड इज द वोल्टेज एट विच, जितनी बैरियर पोटेंशियल हो जाएगी डायोड की, इज द वोल्टेज एट विच द अप्रिशिएबल करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द डायोड। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो करंट है वो फ्लो करना डायोड से स्टार्ट कर देता है। द बैरियर पोटेंशियल वेरीज फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल के लिए बैरियर पोटेंशियल भी डिफरेंट ही होगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायोड। तो डायोड एक ट्रांस कंडक्टेंस कर्व क्रिएट करता है। देखिए डायोड के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाँ जी, एक्स एक्सिस पर क्या है, वी है, वाई एक्सिस पर क्या है, करंट है, आई है। करंट को हम नैनो से मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं, और जो वी है वो हो जाएगा V5 से, बैरियर पोटेंशियल से लेके हम BBR तक यूज़ करते हैं उसको। हाँ जी, देखिए कर्व कहाँ से जा रही है, नीचे से ऊपर तक जा रही है। नीचे जो है माइनस वाई एक्सिस से लेके पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक ऊपर तक कर्व जा रही है। तो VD क्या होते बोलते हैं, उसको बायस वोल्टेज बोलते हैं, एंड ID को बोलते हैं करंट थ्रू डायोड। ID इज़ ए नेगेटिवली फॉर रिवर्स बायस। ID क्या है, नेगेटिव फॉर रिवर्स बायस के लिए नेगेटिव है, एंड पॉजिटिव फॉर द फॉरवर्ड बायस के लिए पॉजिटिव है। IS को बोलते हैं सैचुरेशन करंट बोलते हैं। BBR को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। B5 को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज। What is the properties of diode? The transconductance curve on the previous slide is characterized by the following equation. ID क्या है, ID क्या होती है हमारे पास, करंट थ्रू डायोड कितना हो जाएगा, IS इंटू E VD बाई ईटा VT माइनस 1। As described in the last slide, ID is the current through the diode, IS is the saturation current, VD is the applied bias voltage. तो VT क्या है, VT is the thermal equivalent voltage and is approximately 20 millivolt at room temperature. The equation to find VT at various temperature is VT is equal to KT by Q. K क्या है, कांस्टेंट, तो दैट इज इक्वल टू 1.38 × 10⁻23 जूल पर के। टेम्परेचर इन केल्विन में यूज़ होता है। Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 C। सो ईटा इज क्या है, एफिशिएंसी। ईटा इज अ इमिशन कोफिशिएंट फॉर द डायोड. It is determined by the way the diode is constructed. It somewhat varies with diode current. For a silicon diode, eta is around 2 for low currents and goes down to about 1 at higher currents.
तो डायोड सर्किट मॉडल्स में क्या आ जाएगा, डायोड इज डिजाइन टू अलाउ करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, डायोड के अंदर करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। द परफेक्ट डायोड वुड बी अ परफेक्ट कंडक्टर इन वन डायरेक्शन फॉरवर्ड बायस्ड एंड अ परफेक्ट इंसुलेटर इन द other direction reverse bias. In many situations using the ideal diode approximation is acceptable. For assume the diode in the circuit below is ideal. Determine the value of id if va is equal to 5 volt, 5 volt means के forward bias and va is equal to minus 5 volt, 5 volt minus 5 means कि it is a reverse biased। हाँ जी डायग्राम देखिए, va क्या है, हाँ जी वोल्टेज कितनी पॉजिटिव नेगेटिव, रेजिस्टेंस कितना 50 ओम एंड आईडी क्या है, करंट थ्रू डायोड। जब वी ई की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा हो जाएगी डायोड इज़ इन द फॉरवर्ड बायस्ड। जब वी ई की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है तो डायोड को बोलेंगे वो फॉरवर्ड बायस्ड है एंड इज़ एक्टिंग लाइक ए परफेक्ट कंडक्टर। तो आई डी क्या हो जाएगी, वी ए बाई आर एस इज इक्वल टू, वी ए क्या है हमारे पास 5 वोल्ट है और आर क्या है 50 ओम है, इसको टोटल में कितना हो जाएगा 100 मिली एम्पियर। इसके बाद सेकंड कंडीशन है जब वी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है द डायोड इज इन द रिवर्स बायस होती है एंड इज एक्टिंग लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। जब वी की वैल्यू ज़ीरो से, जब वी क्या है लेस देन ज़ीरो है देन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा और डायोड क्या है कि परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करेगा। देयरफॉर नो करंट कैन फ्लो, आई डी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सो डायोड सर्किट मॉडल्स में देखिए, अगर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू बी मोर एक्यूरेट देन जस्ट यूजिंग दैट आइडियल डायल मॉडल इंक्लूड अ बैरियर पोटेंशियल ज्यूम वी फाइव इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट्स है, टिपिकली है, आई डी है, आई डी की वैल्यू को फाइंड करना है, वी ए क्या है 5 वोल्ट है, ठीक है। तो आर एस कितना है 50 ओम है, आई डी है वी फाइव है, वी ए की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है, डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायस होता है एंड इज एक्टिंग लाइक ए परफेक्ट कंडक्टर। सो के वी एल इक्वेशन क्या बोलेगी, तो वी ए कितना ज़ीरो इज इक्वल टू वी ए माइनस आई डी आर एस माइनस वी फाइव, आई डी निकालो यहाँ से क्या आ जाए वी ए माइनस वी फाइव बाई आर एस, टोटल में कितना आ गया 4.7 वोल्ट से लेके 50 ओम 94 मिली एम्पेयर आ जाएगा आंसर इसका। तो डायोड सर्किट मॉडल, दिस मॉडल इसमें क्या है, डायोड के आगे हम वी वोल्टेज और रेजिस्टेंस लगा देंगे। इट कंक्लूड्स द लीनियर वोल्टेज रेजिस्टेंस दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन ऑफ द ट्रांसकंडक्टेंस कर्व। However, this is usually not necessary since the RF forward resistance value is pretty constant. The low power germanium and its silicon diode RF value is usually in the 2 to 5 ohm range. तो RF कितना हो जाएगा VD by ID। दिस इज अ डायोड सर्किट मॉडल्स। ID करंट कितना हो जाएगा, डायोड करंट आइडियल मॉडल में कितना हो जाएगा 100 मिली एम्पेयर, आइडियल डायोड मॉडल विद बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज 94 मिली एम्पेयर, आइडियल डायोड मॉडल विद बैरियर पोटेंशियल विद लीनियर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 85.5 मिली एम्पेयर। टाइप्स ऑफ डायोड यूजेस, पी एन डायोड हो जाएगा, सिंपल है, दिस इज अ जीनर डायोड, सिंपल सेकंड वाला जीनर डायोड है, फर्स्ट वाला क्या है पी एन जंक्शन डायोड है। दिस इज शुटकी डायोड, सिंपल है। नेक्स्ट है शॉकले डायोड का सिंबल है ये। दिस इज अ एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स, सिंबल देख लीजिए इसका। अगेन फोटो डायोड्स, हाँ जी एलईडी के डायोड के अंदर जो एरो है आउटपुट आ जाएंगे, फोटो डायोड के अंदर एरो इनवर्ड आ जाएंगे। तो स्केमेटिक सिंबल्स फॉर द फोटो डायोड्स, दिस इज द स्केमेटिक सिंबल ऑफ द फोटो डायोड। ओके
हाँ जी, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो आप, स्टडी करो। पीएन जंक्शन डायोड्स एंड किस मटेरियल से बना होता है, ये सारा मैंने करवा दिया है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाय, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार से गो थ्रू कर लीजिए आप।